अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड ओवर देयर। आज का लेक्चर सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एक अच्छा स्पीकर या एक अच्छा प्रेजेंटर बनना चाहते हैं। इन दिस लेक्चर यू विल लर्न अबाउट सम प्लानिंग एंड गाइडलाइंस फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। First of all, we should know about the history of presentation. The art of public speaking can be traced back to classical ancient times, begin about 2500 years ago in ancient Athens. The word rhetoric comes from the Greek word rhetoric, which means the art of persuasion. Aristotle's treatise on rhetoric, which was written in the 4th century BC, is one of the first texts that discuss how to effectively communicate to an audience. Aristotle presented specific rules and models on how to speak to an audience. He advised orators to use ethos, means credibility, pathos, means emotion, and logos, mean reason in their speeches in order to persuade their listeners. In addition, Aristotle discussed the different types of speeches that can be given, such as deliberative, forensic, epidictic, and ceremonial. These different types of speeches are still used today. Here what we learn कि presentation का आगाज BC से शुरू होता है before Christ, जहाँ पर हम देखते हैं कि Aristotle was the person who gave some rules, जिसमें क्या था एथॉस, credibility, सच्चाई कितनी है, आप जो प्रेजेंट कर रहे हो उसमें कितनी सदाकत है, पैथोस, इमोशंस, किस हद तक वो चीज़ जो है वो अप्रोच कर सकती है लोगों को, लोगोस, रीजन, वो जो भी चीज़ आप किसी को दे रहे हैं उसका मकसद क्या है, इफ़ेक्टिव है लोगों के लिए, अगर उसमें फ़ायदा है, लोग उससे कुछ लर्न करते हैं तो डेफिनेटली आप वो चीज़ अपने लिसनर्स को दें। तो दीज आर the facts that we have been found in the history of presentation. यही वो rules हैं जिनको हम आज भी अपने यहाँ use कर रहे हैं। Now, what is presentation? In that age, public speaking was mainly used for political and legal purposes. Citizens need to speak on their own behalf in front of an audience to make their case and argue for what they believe in. This was the time when rhetoric flourished as an art form. Now, presentation almost used in every field of knowledge to convey information or idea to the audience. Presentation consists of presenter, audience, and message. Presentation is a mode of conveying information to a selected group of people. An ideal presentation is one that identifies the needs, interest, and understanding level of the audience. प्रेजेंटेशन nowadays हर फील्ड में इस्तेमाल होती है, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं या एम्प्लॉय हैं, वट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है या कंपनी में है, किसी भी आइडिया को, अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई इनोवेशन है, कोई न्यू चीज़ है या आपने कोई वर्क किया है, उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए उस आइडिया को जो वे हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। Now there are some guidelines for presentation. In any organization, there is a general practice of requiring students or employees to hold an oral and written presentation on a specific topic or project. In this, giving a detailed report of a company or idea to the investors, etc. Presentation usually require preparation and organization of ideas, interactive presentation in which the audience is involved and it attracts more attention from the audience. The oral presentation. Supposed to develop ability to present knowledge in an oral form to others, this ability can be expected from teachers and indeed from anyone studying in the field of humanities, where you interact with others. Choice of topic. The topic on which you prepare for oral presentation is normally suggested by the authorities, lecturer or teacher or any organization, offering you to select from a list of possible themes. यहाँ गाइडलाइन में क्या बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आप बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग एन एम्प्लॉय, आपको ऑरल और रिटन दोनों प्रेजेंटेशन समटाइम्स सबमिट करवानी होती हैं, जिसमें ऑरल मीन्स बोलकर और राइट अप मीन्स लिख कर। समटाइम्स बोथ इन्वॉल्व होता है कि आपने किस तरीके से उसको डिलीवर करना है,
ऑरल प्रेजेंटेशन अमूमन हम रिक्वायर्ड करते हैं जहाँ टीचिंग फील्ड में, या सपोज टू बी फॉर प्यूपल टीचर्स, या लिंग्विस्टिक्स के लिए लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं अगर आप। और इसमें चॉइस ऑफ टॉपिक जो है वो आपको लेक्चर के दौरान भी मिल जाता है, टीचर्स आपको असाइन कर देते हैं। और अगर आपकी कंपनी है वहाँ पर आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको असाइन किए होते हैं उस कंपनी की सक्सेस के लिए। तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और द चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आप डिफरेंट थीम्स को सिलेक्ट कर कर उस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और अपने आइडियाज़ के साथ अपनी ऑडियंस को वो चीज़ जो है वो प्रेजेंट करते हैं, मीन्स पेश कर देते हैं। प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, बी अवेयर अबाउट योर स्टाइल। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव, वेयर यू टेल द रीडर समथिंग। एक्सप्लेनेटरी, वेयर यू मस्ट एक्सप्लेन अ phenomenon. Number 3, argumentative, where you try to convince the reader that your standpoint is correct. And further, team briefing भी हो सकती है, addressing to audience, talk and lectures etc. किसी किस्म की speech, कोई भी स्टाइल आप अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक अपना ऑब्जेक्टिव सामने रखकर, ऑडियंस को सामने रखकर आप वो स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करते हैं। जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है कि आपने सिर्फ एक चीज़ बतानी है और दूसरों ने सुननी है। एक्सप्लेन करने में क्या होता है, आपने पूरा फिनोमिनन विद प्रैक्टिस एक्सप्लेन करना होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव है जिसके अंदर आपने प्रॉपर तरीके से कन्विंस करना है अपनी ऑडियंस को कि आपका स्टैंड पॉइंट या जो काम आपने किया है वो उसको एग्री हो उसके साथ। और इसके अलावा हम मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रेजेंट करते हैं। समटाइम्स हम ब्रीफिंग दे रहे होते हैं किसी टीम को, समटाइम्स हम किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, सिंपल टॉक हो रही होती है, या क्लासरूम में हम क्लास ले रहे होते हैं या लेक्चर दे रहे होते हैं। So there are different types that we can use for presentation in different ways. Guidelines for preparation a presentation. Number 1 क्या है? Use library or field before selecting of a topic. Make sure that the material you require is available in the library or in field. Remember that when you are collecting references, you should make maximum use of the authentic resources. If you find a book which is relevant, always consult the bibliography at the back for further references which beneficial in preparation. क्या बताया गया कि सबसे पहले जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके मुतालिक पता हो आपको कि मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। जो टॉपिक आपने लिया है उसके रिलेटेड मटेरियल मौजूद होना चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी कंसल्ट करते हो तो वहाँ पे बुक्स ज़रूर मौजूद हों। अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी टारगेट ऑडियंस या ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जिनमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज हो सकते हैं, फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, या आप किसी से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ग्राउंड ज़रूर चेक करना है। यूजिंग मीडिया, मेकिंग नोट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन योर गैजेट, mobile, laptop, computer, tabs, as it's very helpful for you in future. Always make notes of a book. This saves time, later you can use it again. मीडिया का यूज़ आपको पता हो, आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आप जो भी चीज़ इस्तेमाल करें मीडिया में, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कोई टैब है, इवन कोई बुक है, कोई कॉपी है, तो आपको जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन मिलती है आपको फ़ौरन से उसमें उसको नोट करना है और उसके आपने नोट्स बना लेने हैं ताकि फ्यूचर में वो आपके काम आ सकें। किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। रेफरेंसेस को ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं कोई बात या कोई चीज़ आपने अगर ऐसी बता दी है और लोग फिर उसके मुतालिक पूछते हैं कि ये रेफरेंस आपने कहाँ से लिया, ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली, तो आपके पास वो रेफरेंसेस, वो सोर्सेज मौजूद होने चाहिए ताकि आप उन्हें प्रॉपरली गाइड कर सकें कि ये ऑथेंटिक सोर्स है। और बुक्स का पता हो, उनके नाम का पता हो, उनका ऑथर पता होना ज़रूरी है, किस ईयर में पब्लिश्ड हुई, कहाँ पर हुई। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको बड़ा अपने नोट में शामिल करनी है, या जिस जगह आप नोट कर रहे हैं उसमें आपने जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो आपने उसमें ऐड करनी है। मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन regarding audiovisual aids. Use of audiovisual aids enhanced to represent the facts and figures in the form of table, charts and graphs. Use of internet. The internet, as you know, is a great source and save a lot of manual work in searching for material.
However, that much of information available of internet is incomplete and has not been checked thoroughly. This applies in particular to articles, part of books, or instruction materials. The internet is good for finding out information from other organizations and institutions of the world by access of their libraries. ये इन चीज़ों का इस्तेमाल आपको आता हो. If you have want to become a good presenter, then you should know how to use audio visual aids. आपको charts बनाने आते हो, आपको tables बनाने आते हो, आपको graphs का पता हो, आपको internet का proper use आता हो, आप दूसरी organizations के साथ, दूसरी universities के साथ interact कर सकें, आपको properly पता हो कहाँ से आपने proper books को या material को आपने एक्सेस करना है ताकि आप अपनी अपनी मटेरियल को या जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हैं उसको बेहतर और ऑथेंटिक बना सकें. नाउ प्लान ऑफ प्रेजेंटेशन को अमूमन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है या सेक्शंस भी आप इन्हें कह सकते हैं. नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज बॉडी एंड नंबर 3 कंक्लूजन. इन तीनों सेक्शंस की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. First of all, introduction. The introduction states the purpose of your work. It offers a general orientation and framework about what is going to be present. The beginning of the presentation should be interesting enough to retain the attention of the audience. Introduction जितना ज़्यादा powerful होगा उतना ही audience जो है वो first glance में आपकी तरफ attract होगी. Body. The body of the presentation contains the main data. It works from general to particular, so during this, don't take any relevant knowledge for granted. Add references with your passion in this section of presentation. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने इंट्रोडक्शन दिया, ऑडियंस को अट्रैक्ट किया, अगर वो टॉपिक उनकी नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मोटिवेटेड होंगे मज़ीद लर्न करने में. बॉडी क्या है? यहाँ पर आपने अपना मेन मैसेज, आइडिया या थीम जो भी है उसको प्रेजेंट करना है, उनके सामने पेश करना है. Now conclusion. The ending of the presentation should leave a deep impact on the audience. The conclusion draw all the possibilities and results of the analysis in a structured and understandable manner. Conclusion बताता है कि आपने किस तरीके से पूरा काम किया था और जैसे इंट्रोडक्शन अहम है वैसे ही कंक्लूजन भी अहम है, जो कि फर्दर भी ऑडियंस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसका एक डीप इम्पैक्ट होता है जो कि आप अपनी ऑडियंस पर देते हैं या छोड़ते हैं, व्हाटएवर. तो दीज 3 सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. आफ्टर जब आपने अपना तीनों सेक्शंस को प्रिपेयर कर लिया तो इन पॉइंट्स को भी आपने देखना है. दैट मेक श्योर दैट स्टेटमेंट्स फॉलो लॉजिकली. टेक केयर टू कंसीडर ऑल एस्पेक्ट ऑफ एन इशू. If you use technical terms, then consider whether these can be understood. At all costs, avoid the unnecessary use of jargons. Use plain English. If you have to use technical term, make sure that you know their exact definition. When defining a term, then define in simple words and give an example. इन points को follow करना बहुत ज़रूरी होता है. Here are some typical mistakes during presentation. The presenter loses contact with the audience. Have several reasons for this. Number 1, monotonous style of delivery, dead or low voice tone, not speak loud enough, avoidance of eye contact with the audience, a lack of body movement and expressions. The content of the presentation may not be presented well. Too much information without clear structure may lose the interest of the audience and take enough time to finish the presentation. Sleepy audience. ये तमाम चीज़ें जब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लो होगी, डेड वॉइस होगी और आपका प्रॉपर ऑडियंस के साथ कांटेक्ट भी नहीं होगा, आप कोई एक्सप्रेशंस भी नहीं देंगे, तो इस सबसे क्या होगा, आपकी ऑडियंस जो है वो स्लीपिंग मोड में चली जाएगी और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकेगी. तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है. आपने अपना सबसे पहले पैशन होना चाहिए आपको, जो भी आपने प्रेजेंट करना है. आई कॉन्टेक्ट रखें, अपना प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेशंस दें उनको और कोशिश करें कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ आपने डिलीवर करनी है वो क्लियर हो और ऑडियंस के इंटरेस्ट के और उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से प्रेजेंट की जाए. Now some factors of effective presentation. Number 1, audience analysis. Number 2, communication environment. Number 3, personal appearance.
Then use of visuals, opening and closing presentation, organization of presentation, language and words, voice quality, body language and answering questions. ये तमाम चीज़ें ज़रूरी है। टोन ऑफ योर वॉइस, जैसा कि अभी आपको बताया, स्टार्टअप ऑफ द प्रेजेंटेशन शुड बी lively and motivated. It is essential to speak clearly and not too quickly. Make sure that you have command on your work during talk, engaging yourself in a minimum movements. Personal appearance. The speaker has a great impact. A person who is well dressed, wearing limited accessories, and looking professional can influence the audience by his communication effectively. Listener participation in this incorporate the audience into the presentation and ensure that they understand your topic. Use witty conversation if needed. Make use of additional media. For instance, you can use charts, figures, handouts, transparencies, etc. Tape recorder and mostly used in linguistic presentations. Video recorders may also be helpful. Have skill to use of visual aids, dealing with stress and answer questions. Do a trial before your presentation. It disturbed the flow of presentation if any of your media or gadget not working well. So make sure to know the use of all the materials using your presentation. You have to control over the entire environment with your strong presence and style. बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपने उस पर खुद काम किया है तो वो नेचुरली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप प्रॉपर तरीके से फेस कर सकते हैं ऑडियंस को। आपको डीलिंग आनी चाहिए, स्ट्रेस को किस तरह से डील करना है, ऑडियंस अगर कुछ पूछ लेती है कोई क्वेश्चन उसको किस तरह से डील करना है, आउट ऑफ द वे जाकर अगर ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन कर रहा है उसको किस तरह से डील करना है। कुछ शरारती किस्म के लोग भी क्लासरूम में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या जहाँ भी आप कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपना कोई आइडिया, तो वहां पर कोई ऐसा क्वेश्चन अगर हो गया तो आपको पता हो आपने उसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से डील करना है, रिस्पेक्ट देते हुए डील करना है कि बात भी हो जाए और दूसरा भी प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि आप किसी भी जिंदगी की लाइफ में जब आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली तो इंसान हर जगह ही खुद को प्रेजेंट कर रहा होता है। जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बेसिकली वही प्रेजेंटेशन हो रही होती है। हम जब किसी से बात करते हैं तो डेफिनेटली हम कोई आइडिया है जो हम दूसरे को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। बेसिकली हम अपना आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग एन इंडिविजुअल, अ पर्सन शुड बी प्रेजेंटेबल। उसको पता हो कि आप उसने किस तरीके से सिचुएशंस को, हालात को, लोगों को हैंडल करना है। देन इफ यू हैव बिलीव इन योरसेल्फ देन डेफिनेटली यू परफॉर्म वेल। नाउ आई होप आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स या गाइडलाइंस अबाउट प्रेजेंटेशन समझ आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन and query you can add in the comment box. Thanks for watching. I hope you like and understand this video. Do share with others for more related videos and keep watching my channel Candlelight. Stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.